Hello everyone, this is Neelam Joshi and today we will continue our topic of step counting method. Today we will understand some more problem by solving these problem using step counting method, and also I show you the result of all the previous example. So moving ahead, as you all know that step counting method is work on counting the number of steps which are involved in the execution of our instruction in our algorithm, and these steps per execution is counted, and then the frequency is calculated, and then finally the result of total step counting is produced. So in this slide you can see the example result of my previous videos example, which is shown here, and this is the result of my second example, and this is the result of my third example. Okay, now we will discuss some more examples. So let's start. This is the next example. Here you can see that again we are starting with counting of steps per execution. So here first of all, algorithm is just a definition, and here this is just denoting the name of algorithm, so there is no need of counting the steps, so this will become nil here, and the frequency of this statement is again nil or 0, and the total number of steps is also 0 here. Okay, now again for curly braces, as you already know that no steps is executed here, so nil value is indicated, and for frequency it is again nil, and for total number of steps is again nil. Now here you can see that there are three types of loop available, in which the first one is a for loop, and this is starting from the value I is equals to 0 to n, and here the second loop is for j is equals to 1 to m, and here the third loop is for k is equals to 0 to p plus 1. So here the steps per execution for these thrice of a statement is at least 1, or at most 1, so it should be 1, and this is also 1, and for k is equals to is 1 again, and here you can see that this statement x is equals to x plus 1 is also producing some results. So here the steps is executed at least one time, so we mention 1 here again. Now here for frequency, whenever we talk about for I is equals to 0 to n, then you can see that this statement is starting from 0, and it move in loop till n number of element. Okay, so we can understand this thing in that manner. यहाँ पर जो ये लूप है 0 से स्टार्ट हो रहा है और n तक इसकी जो लूपिंग है वो n नंबर्स तक के लिए है। तो जब हम इसका कैलकुलेशन एज अ फ्रीक्वेंसी करेंगे तब यहाँ पर n नंबर्स तक तो वो ऑब्वियस है कि मूवमेंट लूप में है, तो n नंबर तो हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी में मेंशन करेंगे हम। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो स्टार्टिंग है वो 0 से हो रही है, तो यानी कि ये जो लूप है एक बार तो चलेगा फॉल्स कंडीशन के लिए और एक बार ज़ीरो कंडीशन के लिए, यानी कि जो हमारे नंबर का कैलकुलेशन है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी वो n प्लस 2 होगी, बिकॉज वो स्टार्टिंग 0 इंडिकेट कर रही है, देन 1 to n नंबर ऑफ एलिमेंट, एंड देन 1 फॉर फॉल्स कंडीशन. So this is calculated as n plus 2 here. Now if we are talking about 1 to m, then you can see here that j is under the loop of I loop. Okay,
तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है हमारा, सबसे पहले हम जे की कंडीशन देखें। जे लूप हमारा m नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए चल रहा है, तो जो एग्जीक्यूशन है वो m+1 एलिमेंट्स के लिए यहाँ। तो जब हम जे की बात करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जे m+1, ये मूवमेंट जे की केस में है। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि ये आई लूप के अंदर एक्सेस कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक कंडीशन जो इसकी होगी वो कब तक चलेगा, जब तक कि सारी आई नंबर्स की ट्रू कंडीशन एक्सेस करेंगे। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी ये होगी हमारी m+1 इंटू n+1। ओके, मीन्स for all the true condition of J, it should be M, and whenever we talk about the false condition of J, then it should be m+1, and whenever it comes under the looping of I, then it should be n+1. Okay, now the third step is for K, and K is starting from 0 and executed to p+1. Means here you can see that first of all we have to identify the true condition for K statement. तो यहाँ पर जो आपकी ट्रू कंडीशन है K के लिए वो आपकी क्या है, जो आपका लूप यहाँ K के लिए चलेगा वो चलेगा P, उसकी कंडीशन जो ट्रू है, और +2, एक जो उसे फॉल्स कंडीशन के लिए एक्सेस करना है, और इवन एक उसे अपना जो लूपिंग स्टेटमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मूवमेंट करना है। तो इस तरह से हम पी के लिए ये डिनोट कर रहे हैं। अब जबकि इसकी कंडीशन जो ट्रू कंडीशन है वो p+2 तक है, तो हम यहाँ पर अगर एक फॉल्स कंडीशन और इसमें इंक्लूड करते हैं तो जो हमारा लूप है वो स्पेशली के केस में कहाँ तक मूव करेगा, p+3 तक। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो you can see that here whenever we are just taking 0 statement, one false condition and true condition for p+1, then it should be p+3 here, and it is included in the loop of J. So here you can see that all the true condition which are used for J statement are also included for K. So true condition for J statement should be M. So it is multiplied here M into p+3, and this 4 is under the loop of I. So here you can see that the true conditions for loop I is n+1. So it is again multiplied here like n+1. Means this is the total frequency which is calculated for statement K. Means n+1 into M into p+3. Okay, now moving ahead. Next one is the statement which is x is equals to x+1. This is under the K condition and which is also under some other looping statement. So here the statement frequency should be, for especially this statement, it should be n+1 for I and M for J and p+2. Why this p+2? Because this statement is executed till the true condition of K looping statement, and true condition for K looping statement should be p+2. So this is the frequency for this statement. Okay, now finally we are just taking whole this frequency and calculate it into counting as a total steps. Then finally the final result of this total step should be looks like this.
दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट, यू कैन सी हेयर। जो भी अभी हमने पिछले स्लाइड में समझा, एक एक स्टेप को हमने परफॉर्म किया, वो किस तरह से किया और वो किस तरह से वर्क किया, ये सारा का सारा हमारा इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे पूरा एज अ आंसर कैलकुलेट करके मेंशन किया है। ये सारे स्टेप्स जो परफॉर्म किए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, और फाइनली इनके बेसिस पे जो टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप्स ये काउंट होके आए, उनको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो निकल के आई 2mnp प्लस 6mn प्लस 2mp प्लस 5m प्लस 2n प्लस 3। ओके, चलिए वी विल सॉल्व अनदर एग्जाम्पल. This is the another example for step counting method. First of all, it is again started with step per execution, and which is for name of the algorithm should be 0 or nil, and for curly braces it should be again 0. And here you can see that something is mentioned in the form of I is equals to 1. So here one execution is performed, so the steps is calculated as 1. And again here is a looping statement which is while loop, and here condition is given, so steps is executed here, so this is also indicated as 1. Now for curly bracket it should be 0 again, and here is again some execution performed, so steps is calculated as 1 here, and in this statement again some execution is available, so steps is calculated as 1 again. Then for curly braces it should be 0. Okay, now moving ahead for calculation of frequency. Here for this first statement it should be 0 because it is just a name, and for curly braces it should be 0 again. Okay, now you can see here that I is equals to 1. That means there is just a constant value available. There is no looping, no n number and anything other is represented. So we are just calculating the frequency as only one value. So here we mention 1. And now the looping statement, which is I is less than is equals to n, means here the loop is started from I, which is having the value 1, and it is executed till n numbers. तो यहाँ पर जब भी हम इस तरह की वैल्यूज़ फेस करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट की, तब हम क्या करते हैं, तो लूप की जितनी भी ट्रू कंडीशन होती हैं, जैसे कि ट्रू कंडीशन होंगी n तक, और प्लस उसमें एक उसकी फॉल्स कंडीशन को साथ में ऐड कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कैलकुलेट होके आएगी n प्लस 1. Now in next step there is curly bracket available, so it should be 0, and this statement is under the while loop. Okay, x is equals to x plus 1. So this is true for all the n numbers till executed, so it should be true for all n numbers. Then the frequency for this statement should be n, and again the next statement is I is equals to I plus 1. Then it should be true for all n condition. Then the execution is performed for whole n number. Then the frequency should be n here, and 0 for curly bracket. And these total steps when calculated here, then the final result as a total value of number of execution is counted as, you can see here in this as a result 3n plus 2. Okay, you can see that all the steps which we solved here is available, and this is the values where we have to apply some calculation, and here 3n's available, then it should be 3n, and two constant values represent as a plus 2 here. Okay, now I am taking another example of step counting method. This is the another example. Here you can see the another form of algorithm description. So here first of all the statement is name,
So the step per execution counted here is 0, and for curly braces it should be 0 again. There is execution of looping statement is available, so steps is counted as 1, and for J statement it should be 1 again, and there is curly braces, then it should be 0, and as this is the statement which is under the looping statement, so here again the execution is performed, so it is also indicated as 1, and for curly braces it should be 0, and again there is 0. Now we are calculating the frequency. So first of all, it should be 0 here, and for curly braces it is again 0. Now you can see here that the loop is started from 1 and moving towards n numbers. So the frequency here is what? It should be n plus 1, but here if we are just taking this as 1 to n minus 1, means please correct this statement. This is not n, here n minus 1 is available, so please just correct this value. This is I is equals to 1 to n minus 1. Okay, so in this case when it it is moving from 1 to n minus 1, then for all true conditions it should be what? N minus 1. So for false condition it should be n, मीन्स जब ये जो लूप है हमारा n माइनस 1 स्टेटमेंट तक के लिए लूपिंग में एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब इसकी फॉल्स कंडीशन के लिए हम इसे अगेन एक नंबर ऑफ स्टेप्स इसका मूव करेंगे वेरीफाई करने के लिए, तब ये कहाँ तक चलेगा? n नंबर तक। ये इसकी फॉल्स कंडीशन को शो कर रहा है। ओके, नाउ जो ये सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर j i प्लस 1 से लेके n तक लूप में है, ठीक है, यानी इसका एग्जीक्यूशन i प्लस 1 से स्टार्ट होके n नंबर्स तक एग्जीक्यूशन इसका चलेगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या मेंशन करेंगे? इसकी इस लूप स्टेटमेंट की सारी ट्रू कंडीशन। तो इसकी जो ट्रू कंडीशंस हैं वो कहाँ तक रहेंगी? n तक। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक यहाँ i प्लस 1 मतलब एक एक्स्ट्रा एडिशन वैल्यू लेके चल रही है, तो यहाँ पर जो इसकी ट्रू कंडीशन होंगी वो हमारी n माइनस 1 तक चलेंगी। तो जो फॉल्स कंडीशन इस स्टेटमेंट के लिए होगी वो हमारी n तक रहेगी, ठीक है। प्लीज़ करेक्ट कर लेना ये चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी। तो यहाँ पर इंक्लूडिंग फॉल्स कंडीशन ये लूप हमारा n नंबर्स तक एग्जीक्यूट होगा। अब उसके बाद ये लूप हमारा फॉर लूप के एक और फॉर लूप के अंदर है, जिसकी जो ट्रू कंडीशन है वो कहाँ तक है? n माइनस 1 तक। तो यहाँ जो एग्जीक्यूशन इसका परफॉर्म होगा वो होगा n इंटू n माइनस 1। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी। ओके, उसके बाद अगेन कर्ली ब्रेसेस है, तो कर्ली ब्रेसेस के केस में हम 0 मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा जे वाले फॉर लूप के अंदर है, तो ये जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा ये इसकी ट्रू कंडीशन जो दोनों सिचुएशन है हमारी फॉर की, उसकी दोनों की ट्रू कंडीशन जो है वहाँ तक मूव करेगा। तो जो पहला वाला स्टेटमेंट है उसकी हमारी ट्रू कंडीशन कहाँ तक थी? n माइनस 1 तक। और जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है इसकी हमारी ट्रू कंडीशन कहाँ तक है? n माइनस 1 तक अगेन। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारी फॉल्स कंडीशन के साथ n था। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसको वीडियो को एक दो बार देखें, तो आपको जब आप स्टार्टिंग से सारे एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम इनको किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा से ये चीज़ एक बार फिर से समझाती हूँ कि यहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन हुआ था i इज इक्वल्स टू 1
टू n माइनस वन। तो ट्रू कंडीशन हमारी अगर n माइनस वन थी तो हमारी फॉल्स कंडीशन एक इंक्रीज़ होके हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो जब हम इंक्रीज़ करेंगे n माइनस वन की वैल्यू को तो वो हमारी टिल देन n नंबर्स तक एग्जीक्यूट होगी, तो हमारी वो फॉल्स कंडीशन n कहलाएगी। यहाँ वो स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो आई प्लस वन यानी एक ऑलरेडी इंक्रीज होके वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो उसकी ट्रू कंडीशंस थी वो ऑब्वियसली एक डिक्रीमेंट तक यानी n नंबर जितने हैं उससे एक डिक्रीमेंट तक तो ट्रू रही, और जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट फुली कर देंगे तो उस केस में वो n हो जाएगी। तो यानी फॉल्स कंडीशन यहाँ पे क्या रही, n माइनस वन तक। ठीक है, इसीलिए जब हम यहाँ पे दोनों की ट्रू कंडीशंस लेते हैं जब भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन की ट्रू कंडीशन तो ऑटोमेटिकली हमारे उसमें दिखाई दे रही है n माइनस वन है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है बिकॉज ये एक इंक्रीमेंट करके स्टार्ट हुआ था तो इसकी जो ट्रू कंडीशन होंगी वो कहाँ तक होंगी, n माइनस वन तक। ओके, देन फाइनली जो ये स्टेप हमारा जो एज अ रिजल्टेंट परफॉर्म होके फाइनली हमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इसके आफ्टर टोटल नंबर ऑफ स्टेप कैलकुलेट करके जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन की हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी है 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस n, और यहाँ पे सारे वही स्टेप हैं जो अभी हमने किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह से स्टेप्स काउंट किए जाते हैं सीखा था। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद फाइनल फ्रीक्वेंसी ये हमारी एज अ रिजल्टेंट निकल के आई। अगेन आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम in a different way. This is seventh number of example. Here now you can easily note down this thing that how the step per execution is calculated. Like for algorithm it should be 0, and here again this is 0. Number of steps for 1 to n means here the execution is performed, then it should be 1. जे लूप के लिए भी हमारा स्टेटमेंट परफॉर्म हो रहा है, देन इट शुड बी 1 अगेन, देन फॉर कर्ली ब्रशेज इट शुड बी 0. हेयर सी आई जे इज इक्वल्स टू 0. यहाँ पर वैल्यू 0 लिखी हुई है बट यहाँ एग्जीक्यूशन तो हो रहा है, मीन्स आपका एक नंबर यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आपका स्टेप्स यहाँ परफॉर्म हो रहा है, इसलिए यहाँ हम मेंशन करेंगे 1. And in this case k is equals to 1 to n, again 1, and again for this statement it should be 1 here, and for braces it should be 0 and 0. Okay, now we are calculating the frequency of this algorithm. So first of all for name it should be 0, for curly braces it should be 0. Okay, चलिए यहाँ पर जो लूप है वो आपका I इज इक्वल्स टू 1 to n मूवमेंट कर रहा है, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन हमारा जो कंडीशन है ट्रू वो n है, तो लूप हमारा एक फॉल्स कंडीशन को भी चेक करता है, तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ कैलकुलेट होके आएगी वो होगी हमारी n प्लस वन. ओके, एंड जे लूप के लिए अगेन जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आएगी वो क्या होगी, n प्लस वन, सिंपली क्योंकि 1 to n मूव कर रहा है, और बिकॉज ये हमारा आई लूप के अंदर है तो जो इंस्ट्रक्शंस हमारे एग्जीक्यूट होंगे वो उस आई लूप के इंस्ट्रक्शन जितने भी ट्रू हैं उनके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या होगा हमारा n इंटू n प्लस वन, यानी इस लूप के लिए ये फ्रीक्वेंसी रहेगी. चलिए आगे मूव करते हैं. अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है सी आई जे इज इक्वल्स टू 0. तो जब हम इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो बिकॉज ये जे लूप के अंदर है और जे हमारा आई लूप के अंदर है, तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके आएगी वो दोनों की ट्रू कंडीशन के लिए आएगी. तो जो ट्रू कंडीशन है आई की वो है n और जे की है n, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इस स्टेटमेंट के लिए. फिर इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं जो है k इज इक्वल्स टू 1 to n, तो यहाँ पर आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना कि ये जो स्टेटमेंट है के, सबसे पहले तो इसकी ट्रू कंडीशन हम देखें तो इसकी ट्रू कंडीशन रहेगी हमारी n प्लस वन, क्योंकि सॉरी n प्लस वन
इंक्लूडिंग फॉल्स कंडीशन, ओके, क्योंकि लूप हमारा 1 to n एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ट्रू कंडीशन n और इंक्लूडिंग फॉल्स कंडीशन इट शुड बी n+1, ओके। तो ये जो n+1 तक इसकी कैलकुलेशन होगी, बट बिकॉज ये लूप के है, ये ऑलरेडी हमारे जो लूप चल रहे हैं उनके अंदर है, तो यहाँ पर हमें उन दोनों की ट्रू कंडीशन को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे लूप की ट्रू कंडीशन थी हमारी n, और सिमिलरली आई लूप की ट्रू कंडीशन थी n। तो फाइनली जो के लूप है उसकी फ्रीक्वेंसी जो फाइनल रिजल्ट के तौर पे यहाँ पर हमने निकाली वो है n² इंटू n+1, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा Cij इज इक्वल्स टू Cij प्लस Aik प्लस इंटू Bik। सो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, ये तीनों लूप के अंदर है, तो यहाँ पर तीनों की ट्रू कंडीशन तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आई की ट्रू कंडीशन है n, जे की ट्रू कंडीशन है n, सिमिलरली ए के लिए जो ट्रू कंडीशन आएगी वो हमारी आएगी n, यानी कि फाइनली जो इसका टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट होंगे वो होंगे n³, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस के लिए देन 0 एंड अगेन 0। सो ये जो कुछ भी अभी हमारी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होके हमने निकाली, ये सारी की सारी एज अ टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने के बाद एज अ फाइनल रिजल्ट जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो यहाँ पर ये दी हुई है। जब सारी की सारी फ्रीक्वेंसी को हमने कैलकुलेट किया तो ये हमें मिली n+1 n+1 n² n³ प्लस n² एंड n³। यहाँ पर जो ये n³ प्लस n² है, जब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी तो वो इस फॉर्म में अवेलेबल थी। ये जो फ्रीक्वेंसी को जब हमने मल्टीप्लाई किया अंदर स्टेटमेंट के साथ, तो n² का मल्टीप्लिकेशन n से किया तो n³ हमें मिला, और n² का मल्टीप्लिकेशन जब 1 से किया तो n² मिला, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमने इसको एलैबोरेट करके पूरा सॉल्व करके इन टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स में लिखा है, और फाइनली जब हमने इन सबको कैलकुलेट किया तो हमें रिजल्ट मिला एज अ कॉम्प्लेक्सिटी 2n³ प्लस 3n²। यहाँ पे देखिए आप n³ दो अवेलेबल हैं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये एक n³ ये रहा, एक n³ ये रहा, ये दोनों n³ से हमारा फाइनल रिजल्ट बना 2n³, और n² हमारा एक यहाँ पर है n², एक यहाँ है n², और जब हम इस वाले ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें मिलेगा n² प्लस n। तो एक n² यहाँ से हमें मिला तो ये हो गया 3n², और प्लस एक n हमारा ऊपर यहाँ से हमें कैलकुलेट होके मिलेगा, और एक यहाँ से, तो ये हो गया 2n, और लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो सिर्फ हमारे पास एक अवेलेबल है, तो +1। इस तरह से ये फाइनली कैलकुलेशन होता है, जो मैंने भी आपको लास्ट एग्जांपल में भी दिखा दिया। इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को हम काउंट करते हैं फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। सो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि स्टेप काउंटिंग मेथड में हम न्यूमेरिकल किस तरह से परफॉर्म करते हैं, कैसे उनकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, एंड this is also very important in the aspect of final exam, so please be prepared, and कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है then you can again just use this example and solve these problems by own self, and till then thank you so much to all of you। और यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल जो मैंने लिखा हुआ है, इसका रिज़ल्ट है नेक्स्ट स्लाइड में, बट मैं आपको नहीं शो कर रही हूँ। ये एग्ज़ाम्पल आपको खुद सॉल्व करना है और इसको देखना है कि क्या आप इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या आप निकालते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रूर सॉल्व करना, एंड हेयर आर द रेफरेंस यूज़।